So guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, I am a BSc Nursing third year student. So welcome to the second part of respiratory system MCQ discussion. So the first question here: while auscultating lung field of a client with respiratory distress, best method of auscultation is. Options are: listen to the apex, begin listening at the lung bases, listen side to side from top to bottom. Option D, anterior chest then posterior chest. So question is, while auscultating lung field of a client with respiratory distress, in case of respiratory distress we have to auscultate periphery of the lungs. Okay, so option C, listen side to side from the top to bottom or periphery of the side of the lungs. So option C को लग किया जाए 59. Yes. So in case of a respiratory distress client, listen side to side from top to bottom. Okay, so test used to assess the arterial oxygen status. So first thing you think about arterial blood gas. Okay, options are VBG, ABG, SpO2, incentive spirometry. So test used to assess the arterial oxygen status is arterial blood gas. Which among the following is the most accurate method of determining oxygen demand in a COPD client? COPD stands for chronic obstructive pulmonary disease. So in case of COPD client, the method that is SpO2 measuring, that is जो मतलब पल्स ऑक्सीमेट्री होता है उसको हम देख के कुछ फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमारे जो कॉन्फर्मेटिव टेस्ट होता है जो ऑक्सीजन लेवल पता करने के लिए यूज होता है वो होता है आर्टेरियल ब्लड गैस. सो ऑप्शंस आर चेस्ट रेस्पिरेटरी रेट, SpO2, एक्सरे, ब्लड गैस एनालिसिस. ठीक है, तो एमंग फॉलोइंग द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑक्सीजन डिमांड इन ए COPD क्लाइंट इज ब्लड गैस एनालिसिस. ओके, then SpO2 indicate dash. SpO2 indicate percentage of oxygen in blood, percentage of free hemoglobin, percentage of oxyhemoglobin, respiratory rate. So SpO2 indicates basically presence of oxyhemoglobin in blood. So option C, percentage of oxyhemoglobin, C, 62. Yes, of course. So SpO2 indicate percentage of oxyhemoglobin. Then what is indicated if pH is abnormal along with abnormal PaCO2 and HCO3? तो ये एसिड बेस बैलेंस का क्वेश्चन है, तो एक अलग से सेशन इसके लिए हम रखेंगे. और यहाँ आपको याद रखना है कि अगर तीनों मतलब abnormal है SpO2, PaCO2, pH, HCO3, ये तीनों अगर abnormal है तो कंडीशन पार्शियली कॉम्पेंसेटेड होगा. ठीक है, सो B63. yes. The condition arises if pH, PaCO2 and HCO3 are abnormal, that is partially compensated. So what is FiO2? FiO2 ये अगर आप क्लिनिकल सेटिंग में ICU या वेंटिलेटर सेटिंग में काम किए होगे तो FI का मतलब आपको पता होगा. सो FiO2 होता है फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन डिलीवर्ड ऑन इंस्पिरेशन टू द पेशेंट. फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन डिलीवर्ड in inspiration to the patient, that is FiO2. So FiO2 बेसिकली द ऑक्सीजन डिपेंडेंसी को इंडिकेट करता है. मतलब एक पेशेंट को इंस्पिरेशन में कितने ऑक्सीजन हम डिलीवर करते हैं इसको हम FiO2 बोलते हैं. सो हायर द FiO2 द डिपेंडेंसी लेवल इज ऑल्सो हाई. देन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक रेस्पिरेटरी साउंड इन पल्मोनरी एडेमा? सो इन केस ऑफ you have to remember, in case of pulmonary edema the respiratory sound is crackle sound seen in respiratory edema or pulmonary edema. So 65 A को लग किया जाए. yes, characteristic respiratory sound in pulmonary edema is crackle sound. Breath sound auscultated over the lung periphery except over the scapula. Breath sound auscultated over the lung periphery except over the scapula is vesicular lung sound. Options are vesicular, bronchial, bronchovesicular, tracheal. Answer is vesicular lung sound. Option A, 66A. Breath sound auscultated over the lung periphery except over the scapula is vesicular lung sounds. Breath sounds auscultated posteriorly between the scapula and anteriorly over bronchioles, lateral to sternum over first and second intercostal space.
इस क्वेश्चन को आप समझिए और मतलब गौर से सुनिए इसको। ब्रेथ साउंड्स ऑस्कल्टेटेड पोस्टेरियरली बिटवीन स्कापुला एंड एंटेरियरली ओवर ब्रोंकियल्स lateral to sternum over first and second intercostal space is bronchobesicular sound. याद रखिए bronchobesicular sound. B 67 B breath sound auscultated posteriorly between scapula anteriorly over bronchioles lateral to sternum and over first and second intercostal space is bronchobesicular breath sounds. So breath sound seen in pulmonary edema is crackle sound. Breath sound auscultated over the trachea is tracheal sound. Breath sound auscultated over the trachea is tracheal sound. Then chest auscultation finding in a client with pleural effusion. Chest auscultation finding in a client with pleural effusion. So pleural effusion क्या होता है? Pleural effusion is a condition in which fluid accumulation occurs in your lung parenchyma. ठीक है? So in case of pleural effusion, what is the फाइंडिंग? चेस्ट ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग क्या होता है? व्हीजिंग, वेसिकुलर, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड, ग्रंटिंग. ओके, सो इन केस ऑफ प्लेवरल एफ्यूजन द चेस्ट ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग इज डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स. सी 69. yes, diminished breath sounds is seen in pleural effusion. So then when is the best time for the nurse to collect the sputum specimen? स्पुटम स्पेसिमेन हो या यूरिन स्पेसिमेन हो या स्टूल स्पेसिमेन हो, जो भी हो, और अगर हम सुबह मतलब मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग को हम कलेक्ट कर लें तो ये मतलब राइट टाइम होता है. मतलब क्योंकि जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है या जो मतलब हमारा स्पेसिमेन कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा होता है उस टाइम में. ठीक है, सो इन द मॉर्निंग राइट आफ्टर क्लाइंट अवेकन्स इज द राइट टाइम टू कलेक्ट स्पुटम स्पेसिमेन. रेशनल इसका दिया हुआ है, अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू कलेक्ट स्पुटम स्पेसिमेन बिकॉज द पेशेंट हैज नॉट क्लियर्ड हर रेस्पिरेटरी पैसेज. द स्पुटम इज मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके, सो उसके बाद पैरामीटर नीड्स टू बी मॉनिटर्ड इन ए क्लाइंट रिसीविंग मॉर्फिन इंजेक्शन. सो इसको समझिए, जो मॉर्फिन इंजेक्शन होता है वो हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन या बहुत सी कंडीशन में यूज होता है. मॉर्फिन क्या होता है? मॉर्फिन एक पोटेंट एनाल्जेसिक होता है, मतलब उसका सेडेशन इफेक्ट भी होता है और पेन मतलब जो पेन होता है उसको भी रिड्यूस करता है और जो साइकोलॉजिकली पेशेंट को स्टेबल करता है. ठीक है, सो मॉर्फिन एक पोटेंट एनाल्जेसिक है. सो इन केस ऑफ मॉर्फिन ओवरडोज योर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज सीन. सो दैट यू हैव टू एक्सपेक्ट दैट द if a client is receiving morphine injection, so parameter needs to be monitored is respiratory rate, because respiratory compromise occurs in case of client receiving morphine injection. The last physiologic function that the client loses during the induction of anesthesia. anesthesia देने वक्त कौन सी रिफ्लेक्स है और कौन सी फिजियोलॉजिक फंक्शन है जो लास्ट मतलब इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया के बाद लास्टली डिमिनिश होता है? क्या होता है? ऑप्शंस आर कॉन्शियसनेस, कॉफ रिफ्लेक्स, रेस्पिरेटरी मूवमेंट, वॉलंटरी मसल कंट्रोल. सो मुझे भी नहीं पता है इसका आंसर क्या है. सो द लास्ट फिजियोलॉजिक फंक्शन दैट ए क्लाइंट लूजेस ड्यूरिंग द इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया 72. सी आंसर है रेस्पिरेटरी मूवमेंट. सो याद रखिए, जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट होता है वो लास्टली डिमिनिश होता है इन केस ऑफ इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया. Then following bronchoscopy and biopsy, which among the following sign is of immediate concern? कौन सी साइन है जो ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी करने के वक्त हमें इमीडिएट कंसर्न नीड करता है पेशेंट के लिए? ऑप्शन आर हेमोप्टाइसिस, ब्रोंकोस्पाज्म, हेमाटेमेसिस, पायूरिया. क्या होता है? आई थिंक ब्रोंकोस्पाज्म, बिकॉज ब्रोंकोस्पाज्म अगर रहेगा मतलब पेशेंट में तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी डिस्ट्रेस हो जाएगा और पेशेंट डेथ हो जाएगा. सो ऑप्शन बी 73. यस, फॉलोइंग ब्रोंकोस्कोपी एंड बायोप्सी द ब्रोंकोस्पाज्म इज द इमीडिएट कंसर्न. ठीक है, सो ब्रोंकोस्पाज्म रोकने के लिए हमें इंटरवेंशन लेना है.
प्लानिंग इसके लिए हम प्री ऑक्सीजनेट कर सकते हैं और पेशेंट को रेस्पिरेटरी मतलब जो सैचुरेशन मॉनिटर कर सकते हैं इन्वेसिव तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन कैन बी सीन इन फॉलोइंग कंडीशन। ऑप्शंस आर फ्रेनिक नर्व डैमेज, रिब फ्रैक्चर, फ्लेल चेस्ट, ऑल ऑफ दिस। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन क्या होता है? पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन में हमारा जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन प्रोसेस अल्टर होता है। इंस्पिरेशन में जो मसल्स हमारा कंट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स होंगे वो मतलब अल्टर हो जाएगा। जो मसल इंस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं वो एक्सपिरेटरी एक्टिविटी में शामिल होंगे इन केस ऑफ पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। सो इन केस ऑफ पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन in which I think all of these 74D, yes, paradoxical respiration can be seen in phrenic nerve damage, rib fracture, flail chest। phrenic nerve क्या करता है? डायफ्राम को नर्व सप्लाई phrenic nerve के थ्रू होता है। सो paradoxical respiration can be seen in phrenic nerve damage, rib fracture and flail chest। okay, so types of auscultating sound present over the area of consolidation। in case of consolidation, which auscultating sound is present? So I don't know, 75. See, bronchial sounds is here. Okay, so types of auscultating sound present over the area of consolidation is bronchial sound। confirmatory test for pneumonia to determine the extent and location of the infection। जो निमोनिया होता है उसके कौन सी टेस्ट होता है? जो एक्सटेंड को डिटरमाइन करता है, उसके साथ लोकेशन ऑफ इन्फेक्शन को भी डिटरमाइन करता है। सो ऑप्शंस आर ब्रोंकोस्कोपी, चेस्ट एक्सरे, ब्लड कल्चर, स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी। आई थिंक चेस्ट एक्सरे, क्योंकि चेस्ट एक्सरे पे ही हम देख सकते हैं कितने मतलब कितने एरियाज अफेक्टेड है निमोनिया में। चेस्ट एक्सरे सफिशिएंट फॉर डिटरमाइनिंग ए निमोनिया कंडीशन। उसके बाद हम स्पुटम कल्चर करके कंफर्म करते हैं, लेकिन चेस्ट एक्सरे में भी डायग्नोज हो जाता है निमोनिया। सो ऑप्शन बी को लग किया जाए 76 बी। confirmatory test for pneumonia to determine the extent and location of infection is chest x-ray। उसके बाद a client with left lobar pneumonia is ready to discharge if a client with left lobar pneumonia is ready to discharge if grunting is present, fever is 104 degree Fahrenheit, productive cough is present, breath sounds are present in left side। so समझिए ग्रंटिंग जो होता है एक कॉम्प्लिकेशन मतलब रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन होता है, तो हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते पेशेंट को। फेवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब कितना आप सोच सकते हो। तो अगर फेवर है तो इन्फेक्शन है वहाँ पे, कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं? उसके बाद प्रोडक्टिव कॉफ है तो भी हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते। पर जो ब्रेथ साउंड आर प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड होता है, मतलब लेफ्ट लोबर निमोनिया है पेशेंट को, अगर हम ब्रेथ साउंड सुन सकते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब निमोनिया रिजल्व हो रहा है और पेशेंट रिकवर हो गया है अप्रोक्सीमेटली, सो दैट वी कैन हियर ब्रेथ साउंड इन लेफ्ट साइड। ओके, सो वी कैन डिस्चार्ज इफ वी हियर ब्रेथ साउंड्स इन द लेफ्ट साइड। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए 77। येस ऑफ कोर्स, क्लाइंट विथ लेफ्ट लोबर निमोनिया इज रेडी टू डिस्चार्ज इफ ब्रेथ साउंड्स आर प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड। उसके बाद मॉन्टॉक्स टेस्ट Montauk's test read after 72 hours shows 3 mm in duration and red color, then the result is, देखिए 3 mm in duration में कुछ नहीं होने वाला, ये 5 mm और 10 mm से ज़्यादा होता तो हम एक्सपेक्ट कर सकते कि डिजीज कंडीशन है। जो हम इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली वो पॉजिटिव तभी ही होता है 5 mm और 10 mm इन ड्यूरेशन से ज़्यादा हो तो। सो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। मॉन्टॉक्स टेस्ट रीड आफ्टर 72 आवर्स shows 3 mm in duration and red color, then the result is negative। C 78। yes, C well functioning of an intercostal drainage indicated by dash। well functioning of an intercostal drainage, okay, no tingling movement in the water column, ensure that the drainage system is kept at the chest level, clamp the ICD intercostal drainage every 5 hourly, फ्लक्चुएशन ऑफ द फ्लूइड लेवल इन द वाटर सेल चैम्बर। सो देखिए जो इंटरकोस्टल ड्रेनेज होता है उसका वेल फंक्शनिंग हम फ्लक्चुएशन मतलब जो फ्लक्चुएशन और फ्लूइड लेवल वाटर सेल चैम्बर में जो होता है उसको हम देख के हम कंफर्म कर सकते हैं कि
जो आईसीडी है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज है, वो वेल फंक्शनिंग करता है। उसके बाद लैरिंगोस्पाज्म इज सीन इन। लैरिंगोस्पाज्म क्या होता है? जो लैरिंग्स होता है उसका स्पाज्मोडिक मतलब जो स्क्वीजिंग मूवमेंट होता है उसको हम लैरिंगोस्पाज्म टर्म कहते हैं। सो लैरिंगोस्पाज्म इज सीन इन हाइपर रेस्पॉन्सिव ऑफ एयरवे to varying stimuli, repeated traumatic attempts to endotracheal intubation after general anesthesia, all the above. Laryngospasm I think all the above, क्योंकि हम जनरल एनेस्थेसिया के बाद भी देखते हैं 80 DS ऑफ कोर्स। लैरिंगोस्पाज्म सीन इन हाइपर रेस्पॉन्सिव ऑफ एयरवे टू वैरिंग स्टिमुलाई, रिपीटेड ट्राउमेटिक अटेम्प्ट्स ऑफ एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, मतलब हमें आता नहीं है या कुछ गलत तरीके से हम इंट्यूबेट ही कर जा रहे हैं और कंफर्म नहीं हो रहा है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, तो रिपीटेड ट्राउमेटिक अटेम्प्ट के बाद लैरिंगोस्पाज्म हो जाएगा। सो उसके बाद आफ्टर जनरल एनेस्थेसिया के बाद भी लैरिंगोस्पाज्म देखा जाता है। उसके बाद डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक मेथड फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो समझिए एम्बोलिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो जहाँ पे एयर बबल या कुछ क्लॉट वगैरह जाके पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्यूल्स में ही अटक जाए, ठीक है। वो कंडीशन एक मतलब इम्पोर्टेंस क्रिएट करती है, मतलब अगर डायग्नोस नहीं किया गया जितनी जल्द हो सके तो पेशेंट डेथ कर जाएगा। सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हमें क्या इंटरवेंशन लेना है? पल्मोनरी एंजियोग्राफी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्स ऑक्सीमेट्री, वेंटिलेशन, परफ्यूजन स्कैन। सो भाई पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में कुछ नहीं होने वाला, पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सैचुरेशन देख के क्या ही कर लेंगे, और वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन पे भी कुछ नहीं आएगा, तो हमें पल्मोनरी एंजियोग्राफी करना पड़ेगा सो दैट वी कैन डिटरमाइन मतलब जो क्लॉट होता है वो कहाँ पे है और हम कैसे उसको रिमूव करें। सो डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक मेथड फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज पल्मोनरी एंजियोग्राफी, नो डाउट। उसके बाद ए पेशेंट विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज बीइंग टेस्टेड फॉर लंग कैंसर। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है एक पेशेंट को, वो लंग कैंसर के लिए डिटेक्ट भी हो चुका है। Which of the following diagnostic test will be the most conclusive? So अगर एक कैंसर सस्पेक्टेड पेशेंट है वहाँ पे बायोप्सी ही कन्फर्मेटिव टेस्ट है। चेस्ट एक्सरे से कुछ नहीं पता चलेगा, स्पुटम कल्चर पे हम कैंसर डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, MRI पे एक्सटेंड पता चलेगा लेकिन बायोप्सी कन्फर्म नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 82D। यस, so biopsy is the most conclusive test in the diagnosis of lung cancer. It is helpful in determining the type of lung cancer as well as the molecular or genetic profile of the tumor, whereas other tests detects the physical variation in the lung. Okay, chest x-ray and sputum culture are not confirmative tests for diagnosis of lung cancer. Instead MRI, CT scan is a reliable test for diagnostic of lung cancer. मैंने बोला ना कि MRI में हमें एक्सटेंड पता कर सकते हैं कितने मतलब एक्सटेंड हो गई है लंग कैंसर के, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन सजेस्ट ए राइट निमोथोरैक्स? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन सजेस्ट ए राइट निमोथोरैक्स? एब्सेंस ऑफ ब्रेथ साउंड्स इन द राइट थोरैक्स, बायलैटरल रोंकाई, बायलैटरल इंस्पिरेटरी क्रैकल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने बोला था तभी कि अगर वहाँ पे यहाँ पे था एक क्वेश्चन, लेफ्ट लोबर निमोनिया में क्यों डिस्चार्ज करेंगे? क्योंकि लेफ्ट लोबर निमोनिया में ब्रेथ साउंड लेफ्ट साइड पे आ गया है तो पेशेंट रिकवर हो गया है। तो यहाँ पे भी एक उसी तरीके मतलब क्वेश्चन है, अगर पेशेंट को राइट निमोथोरैक्स है तो क्या फाइंडिंग होगा? राइट साइड पे ब्रेथ ऑस्कल्टेशन पे ब्रेथ साउंड नहीं आएगा, ठीक है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन सजेस्ट राइट निमोथोरैक्स? द फाइंडिंग इज एब्सेंस ऑफ ब्रेथ साउंड इन द राइट थोरैक्स। ओके, सो कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर निमोथोरैक्स। निमोथोरैक्स के कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? एक्सरे करने पे पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को निमोथोरैक्स है। सो ऑप्शन आर ऑस्कल्टेटिंग ब्रेथ साउंड, स्पुटम कल्चर, चेस्ट एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी। सो ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, 84। यस, सो कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर निमोथोरैक्स इज चेस्ट एक्सरे। उसके बाद मॉन्टॉक्स टेस्ट इज सेंसिटिव टेस्ट फॉर। मॉन्टॉक्स टेस्ट याद रखिए, आपका याद भी होगा कि जो मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है वो एक कन्फर्मेटिव टेस्ट है किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। बेसिकली डी को लॉक किया जाए, 85D। यस ऑफ कोर्स, मॉन्टॉक्स टेस्ट इज सेंसिटिविटी टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद ए पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज इंडिकेटेड बाय इंड्यूरेशन ऑफ
जो मैंने बताया था, ए पॉजिटिव ट्यूबरकुलेन टेस्ट इज इंडिकेटेड बाय ड्यूरेशन ऑफ 1 to 3 mm in diameter, 10 mm or more in diameter, 4 to 6 mm in diameter, 7 to 9 mm in diameter. सो आई थिंक बी को लॉक किया जाए, 86 बी ही आंसर है। मैंने बोला था 5 से ज़्यादा होगा या 10 से ज़्यादा होगा, ठीक है। सो 5 तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा मतलब रेशियोनलाइज नहीं लगता है। सो 10 mm और मोर इन डायमीटर इज द कन्फर्मेटिव पॉजिटिव ट्यूबरकुलेन टेस्ट, ओके। सो ट्यूबरकुलेन रेशियोनल इसका मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। ट्यूबरकुलेन स्किन टेस्ट इज डन फॉर important and widely used test for diagnosis of tuberculosis. 1 ml of purified protein derivative, जो PPD एडमिनिस्टर किया जाता है कहाँ पे, इंट्राडर्मली। PPD will be injected intradermally and will read 48 to 72 hours later. The result will be depending upon the medical risk factor and sites of induration, ठीक है। सो अगर 5 mm और मोर इंड्यूरेशन हो, so may positive in HIV person or recent contact with TB cases, active TB cases, person with nodular or fibrotic changes in chest X-ray, organ transplant recipient and other immunosuppressed patient on long-term systemic corticosteroid therapy, patient on long-term systemic corticosteroid therapy, okay, end-stage renal disease, and in case of 10 mm इंड्यूरेशन और 10 mm से ज़्यादा होगा, अगर 10 mm इज पॉजिटिव सीन इन रिसेंट अराइवल फ्रॉम हाई प्रीवेलेंस कंट्री, IV ड्रग अब्यूजर्स, रेसिडेंट्स एंड एम्प्लॉयर्स ऑफ हाई रिस्क कॉन्ग्रीगेट सेटिंग्स, माइक्रोबैक्टीरियल लैब पर्सनल, पर्सन विथ क्लिनिकल कंडीशन दैट प्लेस देम हाई रिस्क, फॉर एग्जांपल डायबिटीज, ल्यूकेमिया, लो अर्थ वेट, एंड स्टेज रेनल डिजीज, ओके। एंड 50 mm or more is positive in person with no risk of TB. 50 mm से ज़्यादा होगा तो मतलब उसको हम नो नोन रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस की फाइंडिंग करेंगे। सो उसके बाद द पर्पज ऑफ चेस्ट एक्सरे इन ए मॉन्टक्स पॉजिटिव क्लाइंट, मैंने बताया था कि चेस्ट एक्सरे से हम पता कर सकते हैं कितने एक्सटेंड हुआ है, लेकिन हम कंफर्म करने के लिए हमें स्पुटम कल्चर करना पड़ेगा ट्यूबरकुलोसिस के लिए। सो इसका ऑप्शन है डिटरमाइन द कैटेगरी टू कंफर्म द डायग्नोसिस, डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ लेजियंस, डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। सो द पर्पज ऑफ चेस्ट एक्सरे इन ए मॉन्टक्स पॉजिटिव क्लाइंट इज डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ लेजियंस। सी को लॉक किया जाए, 87 यस। सो डिटरमाइनिंग एक्सटेंट ऑफ लेजियंस। सो इसके बाद मॉन्टक्स टेस्ट परफॉर्म्ड इन ए नर्स हु इज वर्किंग इन टीबी क्लिनिक। सो एक नर्स जो है वो ड्यूटी कर रहा है टीबी क्लिनिक में, सो उसका टेस्ट पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अगर उसको सिम्टम्स नहीं होगा लेकिन उसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा। सो मॉन्टक्स टेस्ट परफॉर्म्ड इन नर्स हु इज वर्किंग इन टीबी क्लिनिक विल बी ए पॉजिटिव स्किन टेस्ट, दैट इज डी ऑप्शन, 88D यस। उसके बाद डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टीबी, मैंने बोला था टीबी जो होता है उसको हम स्पुटम कल्चर करने के बाद ही कंफर्म करते हैं। सो सी 89 आंसर सही है। उसके बाद ब्रीदिंग पैटर्न्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इम्पोर्टेंट फॉर डैश, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड फ्लो, मिक्सचरेशन, रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग। आपको ये पता होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हमारा सांस लेने में ही मदद करती है। उसके बाद व्हिच सब्सटेंस फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ एयर, हमें पता है कि जो एयर में ऑक्सीजन होता है 21% है। सो हम आँखें बंद करके बता सकते हैं कि सब्सटेंस फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन। उसके बाद नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ठीक है। सो रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉजेस, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के रिलैक्सेशन क्या करता है, इंस्पिरेशन, एक्सप्रेशन, नो इफेक्ट ऑन इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन, या बोथ ए एंड बी। सो मेरा भी याद नहीं है, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करता है, 92 ए इंस्पिरेशन। सो इंटरनल इंटरकोस्टल जो होता है वो इंस्पिरेशन का करता है, मतलब जो इंस्पिरेशन होता है उसके लिए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल काम आता है। उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एक्सप्रेशन करता है, ठीक है। सो रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉजेस एक्सप्रेशन, बी को लॉक किया जाए, 93
मैंने बता दिया था कि इंटरनल इंटरकोस्टल इंस्पिरेशन करता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एक्सप्रेशन करता है। उसके बाद द एक्चुअल गैस एक्सचेंज विथ ब्लड अकर्स इन ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, alveolar ducts and alveoli. I think the actual gas exchange with blood occurs in the alveolar ducts and alveoli. 94. Yes, so alveoli जो होता है, जो टाइनी एयर सैक होता है, उसमें ही मतलब जो सही खेल होता है वहाँ पे होता है, और जो लंग्स इतना बड़ा फेफड़ा होता है उसका काम कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, सबकी काम होता है, लेकिन जो रेस्पिरेटरी एल्वियोला होता है उसका काम ज़्यादा होता है, वही रेस्पॉन्सिबल होता है गैसेस एक्सचेंज है। ठीक है, सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड bunch of MCQs. So for today this much. If you have any doubt then you can refer Google, और नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आप तो शेयर करते नहीं हो, सब्सक्राइब भी करते नहीं हो और कमेंट भी नहीं देते हो, तो इतना मतलब जो सेल्फिशनेस ये सही नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। अप टू नेक्स्ट सीजन, टाटा बाय बाय।